السلام علیکم ناظرین۔ رات کے 8:15 بج رہے تھے کہ ٹرین نے ہمیں جموں پہنچا دیا۔ ہم ایک ایک کر کے الگ الگ ہو کر اسٹیشن سے باہر نکلے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے آگے آگے تھا۔ میں ایک جگہ اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق چاروں ہندو تقریب کار میرے پاس آ گیا۔ میں نے انہیں کہا، ہمارا ٹارگٹ پنجاب ہوٹل ہے۔ ہم الگ الگ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 9 میں جائیں گے۔ اوکے، سب نے دبی زبان میں کہا یس سر، اور ہم ایک بار پھر الگ الگ ہو گئے۔ میں اس سے پہلے جموں آ چکا تھا۔ میرے لیے یہ شہر نیا نہیں تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور اسے پنجاب ہوٹل چلنے کو کہا۔ پنجاب ہوٹل درمیانے درجے کا 2 منزلہ ہوٹل تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 9 کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، دلی سے آپ کا ایک مہمان آیا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے درمیانے قد کا گھٹے ہوئے جسم والا ایک پکی عمر کا آدمی کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کالی داس کا بتایا ہوا کوڈ ورڈ بتایا تو وہ آدمی دروازے سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اندر آ جاؤ، میرا نام جیک ہے۔ کمرہ بے ترتیب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کرسی پر سے چادر اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ الگ الگ کر کے آئیں گے۔ جیک نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، تم نئے رنگروٹ لگتے ہو۔ کیا تم پارٹی لیڈر ہو؟ ہاں۔ مرلی پرساد تمہارا نام ہے؟ جی ہاں۔ جیک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کالی داس نے تمہارا ریکارڈ بھجوا دیا تھا۔ تمہارے ماتا پتا گوال منڈی کی آگ میں جل کر سورگ باش ہوئے تھے کیا؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، تم لاہور جاؤ گے اور گوال منڈی کے اندر کسی بڑی دکان میں اکٹھے 2 ٹائم بم لگا کر دھماکہ کرو گے۔ تم ایسے ضرور خوشی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں تو مسلمانوں سے اپنے ماتا پتا کی مورتیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس سے اچھی اور کون سی بات ہوگی کہ جہاں میرے ماتا پتا کو جلایا گیا تھا وہیں میں اپنے دشمنوں کو بھسم کروں گا۔ جیک اس دوران میری طرف مسلسل گھور کر دیکھتا رہا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں میرے چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے کسی راز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے دل میں کہا، تمہارے والد صاحب اس راز کو معلوم نہیں کر سکتے جو میرے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک کر کے ہمارے باقی تقریب کار ساتھی بھی آ گیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ہندو والا تھا، یعنی دال اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں، بلکہ چپاتیاں اور موٹے چاول اور دہی۔ مجھے دل میں گل خان کے ساتھ کھائے ہوئے مرغ روسٹ یاد آ رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے آ گئی۔ میں نے پارٹی لیڈر کی حیثیت سے جیک سے پوچھا، سارے یہاں سے ہمیں کس وقت نکلنا ہوگا؟ جیک نے مجھے ایک بار پھر گھور کر دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی وجہ سے میں اسے پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا، تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بتا دوں گا۔ اور اب تم پارٹی لیڈر نہیں ہو، اب تمہارا لیڈر میں ہوں۔ آگے میرا حکم چلے گا، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، یس سر، جیسی آپ کی آگیا۔ پارٹی لیڈر جیک، جو شکل و صورت سے، باتوں سے اور اپنے زہریلے رویے سے بھی بڑا سخت متعصب ہندو لگتا تھا، ہم سب کو ایک ساتھ مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ آج رات اور کل کا دن آرام کرو گے۔ کل اندھیرا ہوتے ہی ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ کل کا سارا دن میری اجازت کے بغیر کوئی ہوٹل سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں دشمن کے جاسوس ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں زمین پر چادریں لے کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس آدمی جیک سے، جس کا اصلی ہندوانہ نام مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اس کے ساتھ جتنی زیادہ دوستی ڈالی جا سکتی ہے ڈال کر اسے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہمارا ہندو جاسوس تقریب کار بیٹھا ہوا ہے اور جس کے ساتھ وہاں جا کر ہم نے رابطہ پیدا کرنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ضرور وہ پاکستان کے کس شہر میں کسی خفیہ نام اور بھیس میں رہ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان بن کر ہی پاکستان میں رہ رہا ہوگا۔ یہ اطلاعات مجھے جیک سے ہی مل سکتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس انڈین تقریب کار کو بھی ان تقریب کاروں کے ساتھ ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں ان چاروں کو ہلاک کر کے اس ہندو تقریب کار کی تلاش میں پاکستان میں داخل ہو گیا
तो मैं उसे वहाँ जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मगर फिर मेरे लिए वापस इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो था नहीं कि हुकूमत बॉर्डर क्रॉस कराने मेरी मदद करती है। मैं तो ये सारी कार्रवाइयाँ महज अपने बलबूते पर और अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए, और मेरे दिल में इस्लाम, जिहाद, कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का जो जज्बा था, सिर्फ इस वजह से कर रहा था। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू तखरीबकार का कम अज़ कम पता लग जाना चाहिए, फिर मैं किसी दूसरे तरीके से उसे वहीं गिरफ्तार करवाने या ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। मैंने जैक के साथ हद से ज़्यादा खुशामदाना रवैया इख्तियार कर लिया, खुद उसको चाय बना कर दिया। वो सिगरेट सुलगाने लगा तो मैंने जल्दी से माचिस जलाकर उसके सिगरेट को सुलगा दिया। खुशामद बड़ा खतरनाक हथियार होता है, ये पत्थर में भी सुराख कर देता है। मेरे खुशामद रवैये ने बड़ी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। जैक की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। हमसे कोई बात कर रहा होता या हमें कुछ समझा रहा होता तो मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता। मैंने उस पर मज़ीद असर डालने के लिए मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बड़े कम अरसे में यकीन दिलाया कि मैं एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ और मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने फर्जी माता पिता के जल मरने का बदला लेने की आग भड़क रही है। रात के पहले पैर जब हमारे साथी सो गया तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। जैक कोने वाली छोटी मेज पर एक नक्शा रखे उसको झुककर देख रहा था। मैंने सिगरेट जलाया तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नींद नहीं आ रही मुरली प्रसाद? मैंने कहा, पाजी, जब तक मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने स्वर्गवासी माता पिता के खून का बदला नहीं ले लूँगा, मुझे नींद नहीं आ सकती। जैक ने नक्शा तय करके प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसका मौका मिलने वाला है। तुम्हें अपने पुराने मोहल्ले ग्वाल मंडी में किसी दुकान में ही बम लगाने होंगे। तुम्हारा घर ग्वाल मंडी में ही था ना? हाँ, ग्वाल मंडी की आग में ही वो जल मरे थे। जैक ने भी सिगरेट सुलगा लिया और कुर्सी पर बैठे बैठे अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। तुमने पहले कभी बम लगाए हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा, ये काम मैंने पहले तो कभी नहीं किया, मगर चिंता न करें, ये काम मैं बड़ी होशियारी से करूँगा। बस तुम्हें बमों वाला ब्रीफ केस ग्वाल मंडी की किसी दुकान में ले जाकर किसी ऐसी जगह रखना होगा जहाँ आते जाते किसी की नज़र न पड़े। मुझे लाहौर वाले हिंदू तकरीबकार के बारे में बात करने का मौका मिल गया था। मैंने जैक से पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा क्या? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के एक गांव में मिलेगा। उसको इतला मिल चुकी है, जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे वो वहां मौजूद होगा। मैंने ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में इन लोगों ने और कौन कौन से हिंदू तकरीबकार कहाँ कहाँ तैनात कर रखे हैं, जैक से कहा, मैं तो कहूँगा भापा जी कि हमें पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे में अपने आदमी रखने चाहिए जो हर रोज़ बम का एक एक धमाका करें। जैक खामोश रहा। मैंने मौका मुनासिब जानकर वो सवाल कर दिया जो हकीकत में पूछना चाहता था, बाबा जी, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे कितने आदमी काम कर रहे हैं? जैक मेरे जाल में आ गया। कहने लगा, इस वक्त तो यही नंदलाल ही एक आदमी लाहौर में है। हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहर में अपने अगरवादी जासूस रखने का है। मेरे खुशामदाना सलूक ने इस हिंदू तकरीबकार जैक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले तकरीबकार हिंदू का नाम भी बता दिया। मैंने यह ज़ाहिर करने के लिए कि मुझे इस मौजू से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जल्दी से बात का मौजू ही बदल दिया और उससे कहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी तो बहुत होगी, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे ना? जैक ने जवाब में हल्की सी जमाई लेकर कहा, नंदलाल, तुम लोगों को ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा जहाँ कोई खतरा नहीं होगा। वो पहले भी हमारे आदमी बॉर्डर पार ले जाता रहा है। फिर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। जैक कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। ये जम्मू शहर की खुनक रात थी। मैं पहले भी इसमें आता जाता रहा था। सर्दियों का मौसम निकल रहा था। जम्मू की रात हल्की खुनक थी।
कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में हमारे हिंदू तकरीबकार गाइड जेब के खराटों की आवाज़ आने लगी। मेरी पतलून की जेब में धमाका खेज महलूल की काली शीशी मौजूद थी। मैं इन सब को एक एक करके गर्दनें तोड़कर इन्हें मौत की नींद सुला सकता था। मुझे उस हिंदू तकरीबकार नंदलाल को भी हलाक करना था, जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी राह लाहौर में तकरीबकारी के लिए लगा रखा था। और नंदलाल ने हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की सरजमीन पर वाक़ई एक सरहदी गांव में मिलना था। उस वक्त तक इन लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी था, क्योंकि इनके साथ ही मैं नंदलाल से मुलाकात कर सकता था। चुनाचे मैं दिल में मुख्तलिफ मनसूबे तैयार करने लगा कि इंडिया के सरहदी गांव में नंदलाल समेत इन सब को एक ही वक्त में किस तरह हलाक किया जा सकता है, और इसके बाद क्या मैं वापस उन लोगों के पास जा सकूंगा जिन्होंने मुझे हिंदू समझकर पाकिस्तान में तकरीबकारी के लिए भेजा था, जबकि मज़ीद तकरीबकारी के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए मेरा उनके पास जाना ज़रूरी था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरा दिन इस तरह गुजरा कि हम 5 तकरीबकार होटल के कमरे में बैठे रहे, और हमारा हिंदू लीडर जेक ये कहकर बाहर चला गया कि उसे कुछ ज़रूरी इंतजाम करने हैं। वो दोपहर के बाद आया, कहने लगा सूरज गरूब होने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। हालात बिल्कुल ठीक हैं। कल से सरहदों पर कोई झड़प भी नहीं हुई। जेक को अब मुझ पर बड़ा एतमाद हो गया था। धमाका खेज मवाद के बारे में मेरे पास मशवरों ने उसे काफ़ी मुतासर किया था। मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मुरली प्रसाद तुम मेरे पीछे पीछे आओ गया। उसने बाकी तकरीबकारों को मुखातब करते हुए कहा, सुन लो, अगर मैं पहाड़ों में इधर उधर हो गया तो मुरली प्रसाद तुम्हारा लीडर होगा। मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है सर। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि हमारी पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। हम दो दो एक एक करके होटल से निकले। जेक ने हमें जम्मू शहर से बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह दिया था। जेक ने मुझे अपने साथ ही रखा। हम बाजारों में पैदल चलते शहर के मज़ाफ़ात में होते हुए मैदान में आ गया, जहाँ कहीं कहीं ज्वार के खेत थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था। हम एक जोड़ के पास आकर रुक गया। थोड़ी देर में हमारे दूसरे साथी भी एक एक करके आ गया। यहाँ से हम इकट्ठे मिलकर चल पड़े। जेक को सारे रास्ते का इल्म था। वो असल में एक तजर्बाकार पुराना स्मगलर हिंदू था, जो बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करता था। इराकी एजेंसी के करिंदों ने उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसे भारी मुआवजे पर अपने साथ मिला लिया था। सूरज पहाड़ियों के पीछे गया तो मैदान और खेतों पर अंधेरा सा छा गया। हम खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। हम खामोश थे। जेक आगे आगे था, मैं उसके पीछे था, और बाकी चारों तकरीबकार थोड़ा थोड़ा फासला डालकर हमारे पीछे चले आ रहे थे। हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं था। हमारे लिबास देहाती टाइप के नहीं थे, बल्कि हमने मेली कुचेली पुरानी पतलूनें पहनी हुई थीं। ये लिबास हमें इसलिए पहनाया गया था कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा लाहौर शहर में दाखिल होना था। जेक को मालूम था कि हमें किस किस इलाके से गुजरना है। हम नीम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड आ जाते। इसके बाद खुश्क झाड़ियों वाले बंजर मैदान शुरू हो जाते थे। पहाड़ियाँ भी ज़्यादातर खुश्क थीं और अभी दूर दूर थीं। अभी हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे। हम 2 ढाई घंटे चलते रहे। रात हो गई थी। चूँकि जेक सारे पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गया। जेक भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे, जिन्हें सिर्फ बमों, लारियों के अड्डों, कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने और वहां से निकल आने की ही तरबियत दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गया। जेक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से भुने हुए चने निकाल कर हमें दिया। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जेक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमईन हो गया। हमने एक एक सिगरेट पिया। जेक ने मगरब की जानिब पहाड़ियों के सियाह खाकों की तरफ इशारा किया। उन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम कल शाम के वक्त वहाँ पहुँचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल हमें वहीं मिलेगा। सिगरेट ख़त्म करके हम फिर चल पड़े।
आधी रात तक चलते रहे। अब हम पहाड़ियों के दरमियान आ गए थे। इन पहाड़ियों की ढलानों पर रात के अंधेरे में छोटे कद के दरख्तों के धब्बे नजर आ रहे थे। रात के 2 बजे तक हम इन पहाड़ियों में चलते रहे। इसके बाद एक दरिया आ गया। मैं उसे दरिया समझा, मगर जैक ने कहा कि यह दरिया नहीं है, पहाड़ी नाला है। दूर पहाड़ियों के दरमियान गहरी खाई में यह नाला शोर मचाता बह रहा था। हमने एक पुल पर से नाले को अबूर किया। नाले के दूसरे किनारे पर जाकर हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट बाद दोबारा सफ़र शुरू हो गया। इसी तरह हम इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान सुबह होने तक चलते रहे। जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मंजर काफ़ी बदल चुका था। पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो रहा था और मैदानी इलाका शुरू हो रहा था। जैक कहने लगा, थोड़ी दूर आगे एक गांव है, तुम लोग गांव के बाहर एक जगह छुप कर बैठोगे। मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा। हम थोड़ी दूर गए तो 2 दरख्तों के झुंड के पास गांव के कच्चे मकान दिखाई दिए। खेतों में 2-3 किसान हल चलाते भी दिखाई दिए। जैक ने हमें एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठने को कहा और खुद गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो हमारे लिए लस्सी का कटोरा और ज्वार की रोटियां और साग लेकर आ गया। हम सब ने साग रोटी खाई, लस्सी पिया। जैक कहने लगा, यहाँ का एक जमींदार हमारा अपना आदमी है, वो सिख है और स्मगलर है। अब हम यहाँ 2 घंटे आराम करेंगे। झाड़ियों के दरमियान जमीन पर खुश्क घास उग रही थी। हम वहीं लेट गए। रात भर के थके हुए थे, सो गए। जिस वक्त मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं, मैंने देखा कि जैक जाग रहा था और सिगरेट सुलगाए दूर एक तरफ देख रहा था। हमने 1.5-2 घंटे सोकर आराम किया और ताज़ादम होकर आगे चल पड़े। ये इलाका इस किस्म का था कि कहीं ज़मीन ऊंची हो जाती थी और कहीं मैदान आ जाता था। पहाड़ियाँ हमारी दाहिनी जानिब पीछे रह गई थीं। मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेला ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साय फैलने लगे। यहाँ पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुँच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछ-गछ के लिए रोक सकते हैं। यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। उन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक दिया और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा। ये चीज़ें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें उसी झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब यह झुंड हमारी बाएं जानब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं ज़मीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया हुआ। यकीनन ये वही मकान था जहाँ नंदलाल हिंदू तकरीबकार लाहौर से आकर हमारा इंतज़ार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा कर लाहौर ले जाना था। कुछ देर के बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी हिंदू तकरीबकार नंदलाल आ गया है, मेरे साथ आओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उसे खास तौर पर तारुफ कराया। ये नंदलाल ही था। जवान आदमी था। उसने निस्वारी रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था। सर पर जनाह कैप थी। गोया इस हिंदू तकरीबकारों के लीडर ने अपना पूरा हुलिया पाकिस्तानी मुसलमानों वाला बनाया हुआ था। हम जमीन पर और जैक और नंदलाल चारपाई पर बैठ गया। जैक ने पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है। हम रात के पिछले पैर बॉर्डर क्रॉस करेंगे।
जैक बोला, ठीक है। असला कहाँ है? नंदलाल ने चरपाई के नीचे से एक थैला खींचा। उसमें 2 मशीन गनें थीं। जैक ने स्टेन गन का मैगजीन चैम्बर चेक किया। मैगजीन लोड है, ख्याल रखना। जैक ने मशीन गन घुंडों पर रखते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। ये बताओ कि बॉर्डर पर कोई स्पेशल पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही है? मैंने सब चेक कर लिया है, मामला ठीक ठाक है। जैक बोला, सारे टारगेट लाहौर के हैं कि दूसरे शहर के भी हैं? तकरीबकार नंदलाल ने कहा, एक टारगेट लाहौर का है। जैक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, लाहौर का टारगेट मुरली प्रसाद का है। ये गवाल मंडी में बम का धमाका करेगा। बाकी कौन करेगा? बाकी कौन कौन से शहर हैं? नंदलाल कहने लगा, बाकी अभी सिर्फ 2 शहर हमारे टारगेट पर हैं, कराची और रावलपिंडी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम पेशावर को निशाना बनाने का है। वेरी गुड, फिक्र न करो। तो मैं जो आदमी दे रहा हूँ सारे ट्रेंड हैं और ख़तरनाक दुश्मन है मुसलमानों के। ठीक है। जैक ने रुमाल खोलकर बाकी बची हुई ज्वार की रोटियां निकाल कर सामने रख दी। उन पर साग भी रखा हुआ था। नंदलाल ने जो मकान में पहले से बैठा था और जो वहां आता जाता रहता था, कोने में रखी हुई मटके में से पानी का डोल भरकर दरमियान में रख दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे पास जो धमाका खेज महलूल शीशी में बंद पड़ा है, वो इन लोगों को किस तरह पिला सकूंगा। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ 6 गिलास भी नहीं हैं, सिर्फ एक डोल ही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर डोल में धमाका खेज महलूल डाल दूँ तो ये सारे के सारे डोल में से पानी पिएं। अगर मैं महलूल के कतरे पानी के मटके में डाल देता हूँ, तब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये हमारे तकरीब का इसमें से एक ही वक्त में पानी निकाल कर पिएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि जो लोडेड मशीन गन मुझे दी गई है, मैं इसे काम लूँगा। अगर ये रात को सो गया तो इनकी गर्दनें तोड़ने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मामला थोड़ा मुश्किल और ख़तरे वाला हो गया था। रोटियां खाने के बाद नंदलाल ने चारपाई की दूसरी तरफ नीचे हाथ डालकर ताम चीनी की एक चैनक है और छोटी छोटी 4-5 प्यालियां निकालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर चूल्हे पर चाय चढ़ाता हूँ।